हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक x plus 3y minus 5, 4x plus 5, 10y minus 5 and so on. In class 6, we have seen how these expressions are useful in formulating puzzles and problems. We have also seen examples of several expressions in the chapter on simple equations. Expressions are a central concept in algebra. This chapter is devoted to algebraic expressions. When you have studied this chapter, you will know how algebraic expressions are formed, how they can be combined, how we can find their values, and how they can be used. How are expressions formed? We now know very well what a variable is. We use letters x, y, l, m, dash, 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 etc. to denoted variables. हम variables को denote करने के लिए x, y, l, m, z कुछ भी ले सकते हैं. A variable can take various values. Its value is not fixed. इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती. On the other hand, a constant has a fixed value. Example of constants are 4, 100, minus 17, etc. We combine variables and constants to make algebraic expressions. For this, we use the operations of addition, subtraction, multiplication, and division. We have already come across expressions like 4x plus 5, 10y minus 20. The expressions 4x plus 5 is obtained from the variable x first by multiplying x by the constant 4 and then additing the constant 5 to the product. Similarly, 10y minus 20 is obtained by first multiply y by 10 and then subtracting 20 from the product. The above expressions were obtained by combining variables with constant. We can also obtain expressions by combining variables with themselves or with other variables. Look at how the following expressions are obtained. X square 2y square 3x square minus 5 xy 4xy plus 7 etc. The expression x square is obtained by multiplying the variables x by itself. x square यानी कि x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 2 है तो x को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x. Just as 4 into 4 is written as 4 square, we write x multiplied by x is equal to x square. It is commonly read as x squared. इसको हम commonly क्या पढ़ेंगे, x की पावर 2 ना पढ़ के इसको हम क्या पढ़ते हैं, x squared. ठीक है. अगर यहाँ पे x का क्यूब होता है यानी कि x की घात 3 होती तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. आगे देखिए, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. वी शैल नाउ पुट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म what we have learned about how expressions are formed. For this purpose, we need to understand what terms of an expressions and their factors are. Consider the expression 4x plus 5. In forming the expression, we first form 4x separately as a product of 4 and x and then added 5 to it. Similarly, consider the expression 3x square plus 7y. Here we first form 3x square separately as a product of 3x and x and form 7y separately as a product of 7 and y. Having formed 3x square and 7y separately, we can add them to get the expression.
Terms are added to form expressions just as the terms 4x and 5 are added to form the expression 4x plus 5, and the terms 4x square and minus 3xy are added to given the expressions 4x square minus 3xy. This is because 4x square plus minus 3xy प्लस और माइनस का साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, जब भी कोई संख्या कोई चिन्ह है और ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर कुछ और है, तो जब आपके पास साइन मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। सिंपली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जब भी कोई प्लस माइनस के साइन आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे एक चीज़ आप नोट करिए कि जब आपके पास प्लस और प्लस का साइन हो तो आपके पास प्लस ही आएगा, जब आपके पास प्लस और माइनस का साइन हो तो माइनस आएगा, या फिर बाहर माइनस हो और अंदर प्लस हो तो भी माइनस आएगा, बाहर भी माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो प्लस आएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, ये आपके प्लस माइनस का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए आगे एक नोट भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, नोट द माइनस साइन माइनस इज इंक्लूडेड इन द टर्म in the expression 4x square minus 3xy. We look the term as minus 3xy and not as 3xy. This is why we do not need to say that terms are added or subtracted to form an expression, just added to enough. Factors of a term, जब आप किसी टर्म के फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए let us draw a tree diagram for the expressions 5xy plus 10. The factors are such that they cannot be further factorized. Thus, we do not write 5xy as 5 multiplied by xy because xy can be further factorized. Similarly, if x cube were a term, it would be written as x multiplied by x multiplied by x and not x square multiplied by x. Also remember that 1 is not taken as a separate factors. ठीक है, देखिए इसने एक डायग्राम बनाया हुआ है ट्री, जिसे कह रहा है कि एक्सप्रेशन 5xy प्लस 10 किसको फैक्टर करना है, बीच में क्या साइन है प्लस का, दोनों को अलग अलग टर्म्स में लिख दिया 5xy और 10। ठीक है, 10 आपका कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे 5xy में 5 एक कांस्टेंट है और एक्स वाई आपके वेरिएबल्स हैं, तो तीनों को अलग अलग करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x एंड y। कोफिशिएंट, व्हाट इज कोफिशिएंट, चलिए देखते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। वन ऑफ दिस फैक्टर्स मे बी numerical and the other algebraic. The numerical factors is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. It is also said to be the coefficient of the rest of the term. Thus in 5xy, 5 is the coefficient of term, it is also the coefficient of xy. In the term 10xyz, 10 is the coefficient of xyz. In the term माइनस का 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी कि जो भी आपके वेरिएबल्स के साथ चर होगा, चाहे वो प्लस के साइन में हो या माइनस के साइन में हो, तो वो प्लस माइनस के साइन के अपने साथ वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट। जैसे कि व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज +1, इट इज़ यूजुअली ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल 1x इज रिटर्न एज x, 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज रिटर्न एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। इसी प्रकार से एज इट इज़ जब भी आप किसी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वेरिएबल आ जाएगा। तो हम इसको 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर ना लिख कर ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं। आल्सो द कोफिशिएंट -1 इज इंडिकेटेड ओनली बाय द माइनस साइन। दस -1x इज रिटर्न एज -x, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज रिटर्न एज माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। समटाइम्स द वर्ड कोफिशिएंट इज यूज्ड इन अ मोर जनरल वे, thus we say that
In the term 5xyz, 5 is the coefficient of xy, x is the coefficient of 5y and y is the coefficient of 5x। यानी कि जब भी आपको कोई संख्या या कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में दिए जाएंगे तो एक का जब आपको कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो उस चीज़ को हटाकर बाकी का जो भी आपके पास बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। चाहे उसके आगे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ये आता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। टर्म्स किस टर्म में, विच आर नॉट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं है। गिव देयर न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उनकी न्यूमेरिकल कांस्टेंट बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे और जो नॉन कांस्टेंट है उनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास एक्स वाई प्लस जेड। अब 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्स वाई वेरिएबल ले लिया, एक्स वाई का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो क्या है, +1 है। 13 को छोड़ दिया, यहाँ पे 13 को छोड़ दिया, माइनस का वाई स्क्वायर लिया और वाई स्क्वायर के आगे यहाँ पे कोफिशिएंट हम किसका देख रहे हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस का 1। एज इट इज़ आपको ये एग्जाम्पल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। What are the coefficient of x in the following expressions? इसमें आपको ओनली x का कोफिशिएंट बताना है। जैसे देखिए 4x - 3y। अब y वाला पोर्शन तो आप छोड़ दें, क्यों, क्योंकि उसने किसका एक्सप्रेशन पूछा है, ओनली x का। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए ये 4x - 3y है, माइनस का 3y को छोड़ा, ओनली आपको 4x लिया, x का कोफिशिएंट बताना है। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, प्लस का 4, तो हम कह सकते हैं x का कोफिशिएंट यहाँ हो गया +4। अब देखिए 8 माइनस का x प्लस का y, 8 को छोड़ देंगे, y को छोड़ देंगे, क्या लिया हमने, ओनली माइनस का x। अब आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, x का। अब x के आगे कुछ नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आपको y के कोफिशिएंट देखने बी पार्ट में, बहुत सिंपल है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। For example, in the expressions 2xy minus 3x plus का 5xy minus 4, look at the terms 2xy and 5xy। 2xy and 5xy क्या सेम है आपकी। The factor 2xy are 2x and y and the factors of 5xy are 5x and y, thus their algebraic factors for the same are the same and hence they are like terms. On the other hand, the terms 2xy and minus 3x have different algebraic factors, they are unlike terms। ठीक है, इनमें आपको वेरिएबल्स लिखने हैं। अगर आपके वेरिएबल्स सेम नहीं हैं तो ये आपकी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, और अगर वेरिएबल्स पीछे आपको सेम दिए हुए हैं तो ये आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। Similarly, the terms 2xy and 4 are unlike terms. Also, the terms minus का 3x and 4 are unlike terms. Monomial, binomials and trinomials and polynomials। ठीक है, an expression with only one term is called a monomial। For example 7xy minus 5m 3z square, 4x, यानी कि ओनली वन टर्म होगी जिसमें उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमाइनल। An expression which contains two unlike terms is called a binomial। For example x plus y, 2 unlike terms हैं, सेम नहीं है, एज इट इज नहीं है, अलग अलग टर्म्स हैं। m - 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनोमल। mn plus 4m a square minus b square are binomials। The expression tan pq is not a binomial, it is a monomial।
The expressions a plus b plus 5 is not a binomial. It is contains three terms. An expression which contains three terms is called a trinomial. For example, the expression x plus y plus 7, ab plus a plus b, 3x square minus 5x plus 2, m plus n plus 10 are trinomials. The expressions ab plus a plus b plus 5 is, however, not a trinomial. It is contains four terms and not three. The expression x plus y plus 5x is not a trinomial as the terms x and like terms x and 5x are like terms. In general, an expression with one or more terms is called a polynomial. Thus, a monomial, a binomial and a trinomial are the polynomials. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, स्टेट विद रीज़न. विद रीज़न के साथ आपको स्टेट देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और टर्म आर लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स. ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका 7x एंड 12 है. x और y डिफरेंट है तो ये आपका अनलाइक टर्म हो गई. 15x माइनस 21x. ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है और यहाँ पे भी वेरिएबल x है तो ये आपकी लाइक टर्म हो गई. ठीक है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन पढ़ के देखिएगा. थर्ड पार्ट देखिए इसका, माइनस का 4ab और 7b है. आप ab को ab लिखिए या ba लिखिए, बात एक ही. आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आना तो 6 ही है. तो यहाँ पे भी ab वेरिएबल है, यहाँ पे भी ab वेरिएबल है. कांस्टेंट इसके साथ -4 है, इसके साथ 7 है, तो ये भी आपके पास क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई. उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 3xy और 3x ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है, इसे आपको देखना है. फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर इज द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म्स. इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. आपको कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए. इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. Concentrate on the algebraic part of the terms. Check the variables in the term, they must be the same. Next, check the powers of each variable in the terms, they must be the same. Note that in deciding like terms, two things do not matter. First, the numerical coefficient of the terms and the order in which the variables and multiplied in the terms. फिर आपके पास आती है एक्सरसाइज 12.1. ये आपको करनी है सॉल्व. इसके बाद आता है आपके पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम. एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने हैं आपको. एग्जाम्पल देखिए इसका. Adding and subtracting like terms. The simplest expressions are monomals. They consist of only one terms. To begin with, we shall learn how to add or subtract like terms. देखिए let us add. हमको क्या सपोज करना है कि हमको क्या ऐड करना है, 3x and 4x. We know x is a number and so also are 3x and 4x. तो 3x प्लस 4x आपको 8 करना है. 3x को आप 3 मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हैं. 4x को आप 4 मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हैं. दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों में x कॉमन है, तो 3 + 4 को एक साथ लिख दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसने लिखा हुआ है साइड में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपके पास, जो आपके पास सेम वेरिएबल होता है उसको आप कॉमन ले लेते हैं. अब दोनों में x सेम है, उसको कॉमन ले लिया बाहर. 3 + 4 को आपने ब्रैकेट में रख दिया और 3 + 4 आपके पास क्या हो गया 7. तो ये क्या हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 7x. उसके बाद सेम एज इट इज़ इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है 8xy 4xy एंड 2xy
तीनों में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई वेरिएबल को कॉमन लिया और तीनों को प्लस कर दिया तो आपके पास ये आ गया 14xy। लेट अस सब्सट्रैक्ट 4n फ्रॉम 7n। 7n में से आपको 4n को माइनस करना है, तो n दोनों में कॉमन है, n कॉमन निकाला, 7 माइनस 4 किया, ये 3 आ गया। सेम एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस चलेंगे। एडिटिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस लाइक सम एक्सप्रेशन 3x + 11 एंड 7x - 5। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, सिंपली देखा कांस्टेंट एक साथ रख देंगे और जो हमारे वेरिएबल है उनको हम एक साथ रख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 3x + 11, यहाँ है 7x - 5, तो ये 7x को उठा के हमने रखा 3x के पास, प्लस का 11 और माइनस का 5। 7 और 3 को आप प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 + 7 ब्रैकेट में x प्लस 11 में से 5 गए तो आपके पास बचा 6। 3 और 7 को आपने प्लस करा तो ये हो गया आपके पास 10x और क्या बच गया प्लस का 6। ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको करना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड सिंपलीफाई द एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ये है आपके पास 12m² माइनस का 9m प्लस का 5 माइनस का 4m² माइनस का 4m² माइनस का 7m प्लस 10 एक मिनट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसको हम। ये आपको क्वेश्चन है आपका 12m² माइनस का 9m प्लस का 5m माइनस का 4m² माइनस का 7m प्लस 10। हमने क्या किया कि m² वाले वेरिएबल एक साथ लिख लिए, तो 12m² माइनस का 4m² एक साथ लिख लिया, फिर माइनस का 9m माइनस का 7m प्लस का 5m एक साथ लिख लिया, और कांस्टेंट आपके पास एक ही 10, तो वो लास्ट में चलता रहेगा आपके पास प्लस 10। ठीक है, m² कॉमन लिया वेरिएबल्स, अंदर आपके पास बचा कोष्टक में 12 माइनस 4 ब्रैकेट में प्लस का साइन लगाया, m के साथ क्या कांस्टेंट है -9, फिर है -7, फिर है +5। m को कोष्टक ब्रैकेट के बाहर लिखिया, फिर हमने लिखा +10। 12 में से 4 गया तो क्या बचा 8m² प्लस माइनस वाले साइन प्लस किया, लेकिन साइन किसका आ गया माइनस का 16 प्लस का 5m प्लस 10। 8m² प्लस माइनस का 16 में से प्लस का 5 गया तो क्या बचा माइनस का 11। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है माइनस की, इसलिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। माइनस का 11m प्लस 10, और प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा कि रूल मैंने आपको अभी ऊपर बताया था सेकंड नंबर वाला, देखिए प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 8m² माइनस 11m प्लस 10। ये इसका आंसर हो गया। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल है आपका, सेम एज इट इज ऐसे होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फ्रॉम द सम ऑफ 2y² प्लस 3yz माइनस y² माइनस yz माइनस z² प्लस एंड yz प्लस 2z², सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 3y² माइनस z² एंड माइनस y² प्लस yz प्लस z²।
ठीक है। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा ये। देखिए क्या करना है आपको, पहले इस क्वेश्चन में पहले जो दोनों डिजिट दी गई हैं इनको आपको प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है, पहले इन दोनों को आप प्लस करेंगे, इसको और इसको, उसके बाद इसको और इसको प्लस करेंगे। फिर जो इन दोनों का सम आएगा उसमें से जो इन दोनों का सम आएगा उसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने इसको प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, यहाँ हमने देखा वाई स्क्वायर की टर्म है, ये यहाँ पे एक माइनस का वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर गया तो आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर ओनली। ठीक है, वाई जेड वाली क्या है, 3yz प्लस वाई जेड और ये माइनस का वाई जेड, दोनों अपोजिट साइन है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास बच गया 3yz। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म देखिए, और है क्या वाई स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर, दोनों को आपस में माइनस का प्लस करा तो क्या बचा आपके पास, जेड स्क्वायर पॉजिटिव 2 का और माइनस का 1 है यहाँ पे, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा, तो ये आपके पास बच गया जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस का जेड स्क्वायर। अब इसमें से आपको क्या करना है, इस वाली टर्म का प्लस निकालना है, फिर उसको माइनस करना है। अब इनका प्लस निकालेंगे, देखिए 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3y स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बच गया, 2y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया आपके पास प्लस का वाई जेड, यानी कि क्या बच गया आपके पास 2y स्क्वायर और प्लस का वाई जेड। उसके बाद क्या कह रहा है वो, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, यानी कि ठीक है, फिर आप निकालेंगे माइनस करना है आपको इसमें से, तो क्या क्या बचा था आपके पास, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस जेड स्क्वायर बचा था, और नीचे का जब हमने सम करा तो हमारे पास बचा था 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इनको माइनस करना है तो नीचे वाले जो डिजिट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब इस चीज़ को आप कैसे पढ़ोगे, इस चीज़ को आप पढ़ोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसको आप लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा माइनस का वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3yz माइनस का वाई जेड, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस का क्या हो गया माइनस, तो 3 में से 1/z गया तो आपके पास बचा 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर हो गया माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस का जेड स्क्वायर। देखिए यही हमारा आंसर है। फिर एक्सरसाइज है 12.2, बहुत सिंपल है, आप लोग करके देखिए, आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन करने में। फिर हमारे पास आते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशंस।
एक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल करके बता देती हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू आपको 2 रखनी है और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका देखिए एक्स प्लस 4 है आपके पास, तो x प्लस 4 है, तो x की जगह वो क्या कह रहा है आपको कि x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो 2 + 4 ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन। x की वैल्यू 2, थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, 19 - 5x², ठीक है। तो 19 का 19 रहेगा, x की जगह आपको क्या लिखना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, हम सब जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 19 - 5 × 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा 20, यानी कि 19 - 20 बड़ा है इसलिए साइन किसका आ जाएगा माइनस का। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास -1 इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए भले आप इसका, देखिए थर्ड पार्ट में आपका -1 आंसर आ रहा है। आपको ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपको वैल्यू दी गई हो उसको पुट करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल्स टू -2, 5n - 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 दी हुई है, तो 5 ब्रैकेट में रखा हमने -2 और फिर -2 है ये। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 और प्लस माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं माइनस का 10 माइनस का 2 क्या हो गया -12। सेम एज इट इज़ आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे ए भी 2 वेरिएबल दिए गए हैं, तो दोनों की वैल्यू दी गई है कि आपको ए ये रख के पुट करना है और बी ये रखना है, ठीक है। फिर आपके पास आती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूलाज एंड रूल्स, पेरीमीटर फार्मूला। The perimeter of an equilateral triangle is equals to 3 into the length of its side. If we denoted the length of the side of the equilateral triangle by L, then the perimeter of equilateral triangle is equals to 3L. Similarly, the perimeter of a square is equals to 4L. Perimeter of a rectangle pentagon is equals to 5L, where L is the length of the side of pentagon and so on. एरिया फार्मूला होता है आपका ट्राइंगल का। देखिए, इफ़ वी डिनोट द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बाय एल, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं आपको बिल्कुल लर्न रखने हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। जब तक आपका फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तब तक आप उसकी वैल्यू को पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। फॉर्मूला इसका लर्न होना बहुत ज़रूरी है। If we denote the length of a rectangle by L and its breadth by B, then the area of rectangle is equals to L into B। इसे आप LB से भी डिनोट कर सकते हैं। Similarly, if B stands for the base and H for the height of a triangle, then the area of triangle is equals to B multiplied by H by 2, यानी कि 1/2 BH, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल से रूल ऑफ नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न के रूल क्या होते हैं। इफ़ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, देन इट्स सक्सेसर इज n+1। वी कैन चेक दिस फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 10, देन इट्स सक्सेसर इज इक्वल्स टू n+1 इज इक्वल्स टू 10+1 इज इक्वल्स टू 11, विच इज नॉन। If a natural number is denoted by n, 2n is an even number and 2n+1 is odd number, ठीक है। अगर आप किसी नेचुरल नंबर को स्मॉल n से डिनोट कर रहे हो तो 2n एक इवन नंबर हो जाएगा यानी कि सम संख्या, और 2n+1 एक ओड नंबर हो जाएगा यानी कि विषम संख्या। लेट अस चेक इट फॉर एनी नंबर से 15, 2n is equals to 2 multiplied by n, 2 multiplied by 15 is equals to 30, is indeed an even number, and 2n+1 is equals to 2 multiplied by 15 plus 1, 30 plus 1 is equals to 31, is indeed an odd number। ठीक है, फिर आपको दे रखा सम मोर नंबर पैटर्न।
नंबर पैटर्न देखिए 3, 6, 9, 12 डैश 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 3 कैसे चल रहा है, ये 3 की टेबल में चल रहा है, यानी कि एन की वैल्यू अगर आप 1, 2, 3, 4 डैश 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 रखते जाएंगे तो ये आपको सीरीज प्राप्त हो जाएगी। पैटर्न इन ज्योमेट्री, फिर आपके पास आती है एक्सरसाइज 12.4। ठीक है, जो हमने पढ़ा वो ऐसे आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अगर आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और भी जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो।